کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں خوشامدید، شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ توبہ ٹیک سنگھ میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے کے سیکرٹری نے گھر پر دھاوا بول دیا، توڑ پھوڑ کی اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھی لوٹ لیا، متاثرین کا اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج۔ حالیہ میں چند روز قبل قتل ہونے والے 16 سالہ لڑکے کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا، چچا زاد بھائی نے ساتھیوں سے مل کر اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ ادھر چنیوٹ میں ایک ہفتہ قبل قتل ہونے والی خاتون کے قتل کا بھی ڈراپ سین ہو گیا، قاتل شوہر نکلا جس نے گھریلو جھگڑے کے بعد اہلیہ کو قتل کیا، پولیس نے ساتھی سمیت ملزم کو گرفتار کر لیا۔ خانیوال میں ڈکیٹی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے تاجروں کا جینا دوبڑ کر دیا، وارداتوں کے خلاف شٹر ڈاؤن، کہتے ہیں جرائم کی روک تھام تو درکنار، پولیس ڈکیٹی کی وارداتوں پر مقدمات بھی درج نہیں کرتی۔ نارووال میں گدھا چور گینگ سرگرم، 15 روز میں 100 سے زائد گدھوں کی کھالیں اتار لی گئیں، نشاندہی کے باوجود پولیس سراغ لگانے میں ناکام۔ راجن پور میں آپریشن ضرب آہن 2 55 روز بھی داخل ہو گیا، پولیس کے مطابق چھوٹو اور عطا اللہ گینگ کے 3 اہم رکن گرفتار کر لیے گئے، ملزمان پر قتل، ڈکیٹی، اغوا اور دہشت گردی کی متعدد مقدمات درج ہیں۔ ڈسکا کے سول اسپتال میں رات سے بجلی غائب، اسپتال میں آج ہونے والے تمام آپریشنز ملتوی کر دیے گئے، بجلی بند ہونے کے باعث پانی کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ جدید دور میں جہاں دیگر قدیم رواج مٹتے جا رہے ہیں، وہیں پنجاب کی ثقافت کی علامت تانگا بھی سڑکوں سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے ثقافتی ورثہ کو نہ بچایا تو اگلی نسلیں صرف میوزیم میں ہی اسے دیکھ پائیں گی۔ خیرپور ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کے اسٹاپ بحال نہ ہونے کے خلاف سینکڑوں شہریوں نے اسٹیشن پر احتجاجی دھرنا دیا۔ ضلع ٹھٹھہ میں قائم سرکاری پرائمری اسکول کی حالت زار میونسپل انتظامیہ کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسکول کے میدان میں 1.5 فٹ تک سیوریج کا پانی جمع ہے، اساتذہ اور طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا۔ گھوٹکی میں دلہن کے گھر والے دلہا کے ساتھ ہاتھ کر گئے، 15 سال پہلے نکاح ہوا، دلہا بارات لے کر پہنچا تو دلہن اور گھر والے رفو چکر ہو گئے، دل جلے دلہن نے لڑکی کے گھر کے باہر دھرنا دے دیا۔ چترال میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری، پیشتر سڑکیں بند ہو گئیں، شہریوں کو آمدروفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مانسہرہ میں محکمہ زراعت کی جانب سے شجرکاری مہم شروع، ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں نے بھی پودے لگائے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری، کوئٹہ چمن شاہراہ بند، سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کل یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا جائے گا، مذہبی، سیاسی و سماجی تنظیموں نے تیاریاں مکمل کر لی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔
टोबा टेक सिंह से खबर है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के एमएनए के सेक्रेटरी ने घर पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। टोबा टेक सिंह के महल्ला महमूदाबाद के मकीनों ने पुलिस और मुकामी एमएनए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने झंग रोड पर रुकावटें खड़ी करके रोड को बंद कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मुजाहिरीन का यह कहना था कि मुकामी एमएनए के सेक्रेटरी मियां फर्क इकबाल ने अपने साथियों के हमरा रात गए एक घर में घुसकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और लाखों रुपए मालियत का सामान जबरदस्ती उठा कर ले गए। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने आला हुक्काम से मुतालिबा किया कि बासर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फालिया में चंद रोज कबल कत्ल होने वाले 16 साल लड़के के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। चचाजाद भाई ने साथियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारा। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चंद रोज कबल 16 साल तैयब को गले में छुरी फेर कर कत्ल किया गया, जिसकी एफआईआर पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 8 अफराद के खिलाफ थाना फालिया में दर्ज की गई। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर वकुआ के असल मुलजिम मुजाहिद, जो कि तैयब का चचाजाद भाई है, को शामिल तफ्तीश किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने बेगुनाह अफराद को फौरी रिहा करने के अहकामात जारी किए और तफ्तीशी टीम को नकद इनाम और तारीफी असनाद देने का भी ऐलान किया। चिन्नौर से अहम खबर है, जहां पर एक हफ्ता कबल कत्ल होने वाली खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। कातिल शौहर निकला जिसने घरेलू झगड़े के बाद अपनी अहलिया को कत्ल किया। पुलिस ने साथी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तहकीकात की जा रही है। पुलिस की जानिब से ये वाकया पेश आया था चिन्नौर में, जहां पर एक हफ्ता कबल कत्ल होने वाली खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। कातिल शौहर निकला जिसने घरेलू झगड़े के बाद अपनी अहलिया को कत्ल किया और पुलिस ने साथी समेत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात भी की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था चिन्नौर में, जहां पर एक हफ्ता कबल कत्ल होने वाली खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। कमालिया में कब्जा माफिया सरगर्म हो गया। दरबार और कब्रिस्तान की अराजी पर नजरें जमा ली। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कमालिया शहर के वस्त में सदियों से कायम दरबार मुहिब अली शाह से मुल्हिका कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने नजरें जमा ली। इस हवाले से इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि हाफिज असलम नामी शख्स, जो कि इलाके में कब्जा माफिया के तौर पर अपनी पहचान रखता है, ने थाना सिटी कमालिया पुलिस के साथ साजबाज होकर दरबार और मुल्हिका कब्रिस्तान पर कब्जा करने और कब्रें मिसमार करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस दौरान दरबार की मतवल्ली मोमर खातून हमीदा बीबी ने मुजाहमत की तो पुलिस ने उसके दोनों बेटों को थाने ले गई। हमीदा बीबी ने मीडिया को बताया कि वो 8वीं पुश्त से इस दरबार की खातिमा हैं और ये दरबार और कब्रिस्तान यहाँ सदियों से कायम है। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। खानीवाल से अहम खबर है, जहां पर डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने ताशरों के नाक में दम कर रखा है। वारदातों के खिलाफ ताशरों ने शटर डाउन किया। उनका एक कहना है कि पुलिस डकैती की वारदातों पर मुकदमा दर्ज नहीं करती है। खानीवाल में जहां पर डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने ताशरों के नाक में दम कर रखा है, इसी हवाले से मजीद तफसीला जान लेते हैं। अहमद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा इस बारे में मजीद। जी, गुज़िश्ता चंद रोज से खानेवाल और गिरदोनवा में चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफे के बायस जो ताजर बरादरी इंतहाई परेशान है। पहले तो एक ग्रुप जो मुसलसल ये वारदातें ताले तोड़कर कर रहा था, लेकिन चंद रोज से छतों पर नकब लगाकर वारदातें करने वाला ये गैंग इंतहाई मुतहरक है। अयूब रोड पर ये वारदात बहुत बड़ी एक शॉप के अंदर हुई, जिस पर चोरों ने अंदर दाखिल होकर न सिर्फ कीमती सामान उठाया बल्कि लाखों रुपए नकदी भी यहाँ से लेकर चले गए। इतला मिलने पर पुलिस जो है वो पहुंची है, उसने मालूमात इकट्ठी की है, लेकिन ताजरों ने इस मौके पर जबरदस्त एहतजाज भी किया है, शटर डाउन भी किया है। उनका डीपीओ खानेवाल से मुतालबा है कि इन बढ़ती हुई वारदातों का सद्देबाब किया जाए। जी शुक्रिया अहमद, आपने अपडेट किया।
नारोवाल में गदा चोर गैंग सरगर्म हो चुका है। निशानदेही के बावजूद भी पुलिस उनका सुराग लगाने में नाकाम है। नारोवाल और इसके गिरदोनवाह में गुज़िश्ता 15 रोज में मुख्तलिफ इलाकों से 100 से जायद गधों की खालें उतार ली गईं। अहले इलाका के मुताबिक ये कार्रवाई रात और सुबह के औकात में की जाती है और इससे मुतालिक मुकदमात भी दर्ज किए गए, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अवाम उन्नास का ये कहना है कि हजारों रुपए के गधे चोरी हो गए हैं, जबकि लाखों रुपए मालियत के गधों को बेदर्दी से मारकर चोर खालें उतार कर ले गए, लेकिन पुलिस ताहाल मुलजिमान को नहीं पकड़ सकी। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। राजनपुर से अहम खबर है, जहां पर ऑपरेशन ज़रबे आहन 2 जारी है और पुलिस के मुताबिक छोटू गैंग और अताउल्ला गैंग के 3 अहम रुकन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन पर कत्ल, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुजाहिद दुरेशिक हमारे साथ मौजूद होंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि राजनपुर में ऑपरेशन ज़रबे आहन 2 जो कि इस वक्त जारी है और पुलिस की जानिब से छोटू गैंग और अताउल्ला गैंग के 3 अहम रुकन गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर कत्ल, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी के मुताद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुजाहिद दुरेशिक हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, बताइएगा, ऑपरेशन जारी है, क्या कामयाबी हासिल हो सकी पुलिस को? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन ज़रबे आहन 2 जो है दरियाई कच्चा के इलाका में डीपीओ इरफान उल्लाह खान मरवत की क़यादत में जारी है, जिसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल रही हैं। ये इलाका तक कोई शुरू से जो है वो नो गो एरिया था, लेकिन अब जो है वो राजनपुर पुलिस ने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जिसकी वजह से कई इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं और उनमें आज 3 इश्तिहारी मुलजमान, जिनमें स्टार, अब्दुल सलाम और अब्दुल वहाब जो हैं, ये छोटू और पाटू मरानी गैंग के सरगर्म कारकुन थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया मुजाहिद, आपने अपडेट किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल में आर्थोपेडिक सर्जन ने 5 साला बच्चे चांद अली के पैदाइशी टेढ़े हाथ का कामयाब ऑपरेशन करके हाथ को सीधा कर दिया। मौसा लंगा भटिया के रिहायशी चांद अली के वालिद ने बताया कि उसके बेटे का पैदाइशी तौर पर बायां हाथ टेढ़ा था। अपने बेटे के इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में गया, लेकिन अखराजात उसकी पहुंच से बाहर थे और दूसरे शहरों के डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए महीनों का टाइम देते थे। उसने बताया कि वो DHQ नारोवाल में अपने बच्चे को इलाज की गरज से लाया, जहां आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फराज ने अपनी माहिराना सलाहियतों को बुरेकार लाते हुए 3 घंटे का तवील कामयाब ऑपरेशन किया। डॉक्टर फराज नूर ने मीडिया को बताया कि ऐसे पैदाइशी टेढ़े अज़ा का ऑपरेशन काफी तवील और मुश्किल होता है। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर की अदम फराहमी की खबर वक्त न्यूज पर नशर होने के बाद मरीजों को मतलूबा सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। कुछ देर कबल DHQ में व्हील चेयर और स्ट्रेचर ना मिलने पर लवाहिकीन मजबूरन मरीजा को घर से लाई चारपाई पर ही बिठाकर डॉक्टर के कमरे तक ले गए थे। इस खबर का नोटिस लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राना आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। राना आमिर, आगाह कीजिएगा, वक्त न्यूज की खबर पर नोटिस लिया गया है और मरीजों को सहूलियात दी गई हैं। जी बिल्कुल, आज वक्त न्यूज ने खबर स्ट्रेचर दस्तयाब था और ना ही जो व्हील चेयर है वो मिल रही थी। इस वजह से जो मरीज है वो सख्त परेशानी का शिकार थे। वक्त न्यूज ने आज खबर नशर की है, जिस पर एक्शन लेते हुए DHQ हॉस्पिटल के MS डॉक्टर अनवर अमान ने ट्रामा सेंटर और दीगर जो वार्ड है उनमें जो स्ट्रेचर और व्हील चेयर फराहम किए हैं। उनका कहना है कि अब मरीजों को शिकायत नहीं होगी। इसके वक्त न्यूज की खबर पर आपको बताएं कि नोटिस लिया गया और मरीजों को मतलूबा सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं DHQ गुजरांवाला में। शुक्रिया राना आमिर, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब डस्का के सिविल अस्पताल में रात से बिजली गायब है। अस्पताल में आज होने वाले तमाम ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए हैं। बिजली बंद होने के बायस इमरजेंसी में भी पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है और मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
डस्का का सिविल अस्पताल है, जहां पर रात से बिजली गायब है और अस्पताल में आज होने वाले तमाम ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं। बिजली बंद होने के बायस इमरजेंसी में पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा बिजली कब तक बहाल की जाएगी, क्या खबर है इस बारे में? जी, आज सिविल अस्पताल डस्का में ऑपरेशन डे था। बिरदोनवा से लोग जिनको ऑपरेशन का वक्त दिया हुआ था वो अस्पताल आए हुए थे। अमला ने बताया कि आज पानी और बिजली न होने की वजह से ऑपरेशन नहीं होंगे, आप अगले हफ्ते को आए, जिस पर मरीजों ने एहतजाज करते हुए बताया कि सिविल अस्पताल इंतजामिया हम को हफ्तों से बुलाकर निकले बहाने से वापस भेज देते हैं। आज पानी और बिजली का बहाना बना दिया है। इनका कहना है कि अस्पताल में जनरेटर भी मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। बिजली ना होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया अहमद खान, आपने अपडेट किया। झंग के इलाके मशियाना में 2 माह कबल दरियाए जेहलुम पर बनाए जाने वाला पुल अवाम के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका ने जनाजा रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मशियाना में अवाम के बार बार एहतजाज और दरख्वास्तों पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की खतीर रकम से आमदरोफ्त के लिए आर्जी पुल बनाया गया। बदकिस्मती से ये पुल 2 माह बाद ही बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में शहरी कम वक्त में एक शहर से दूसरे शहर की सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। मशियाना का कब्रिस्तान दरिया की दूसरी जानिब वाक़ई है। इलाका मकीनों को जनाजे ले जाने में भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। फालिया में 72 अफराद ने मेहनत कश खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। मुतासरा खानदान इंसाफ का तलबगार है। मार्च 2014 में अराजी के तनाजे पर मेहनत कश के खानदान के नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर मुल्जिमान के खिलाफ थाना गोजरा में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसकी पैरवी करने पर मुल्जिमान ने मुसल्लह साथियों के हमरा 2 माह कबल उनके घरों पर धावा बोल दिया। मुल्जिमान ने मेहनत कश और अहले खाना पर तशद्दुद किया, जिसके बायस मेहनत कश की टांग और बाजू टूट गया। मेहनत कश का कहना था कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उनके घर का कोई भी फर्द घर से बाहर निकला तो उसे जान से मार देंगे। साडे वास्ते कोई कानून नहीं, गरीब बंदे वास्ते। वजीर आला साहब, मैं हाथ जोड़ के आए गल तरला करना, इन्ना जुल्म इस हुकूमत में, इतना जुल्म अज दी कड़े इस तरह आया। जिस दिन की मैं 50 साल मेरी उम्र हो गई है, अज दी कड़े इतना जुल्म मैं नहीं वेख्या। मेहनत कश ने मजीद कहा कि उसके खानदान के बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुल्जिमान उन्हें असलहा दिखाकर हिरासा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों ने खौफजदा होकर स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। मजलूम खानदान ने अपने घर में एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा किया है। गुजरांवाला में एक बिल्ली फ्लाईओवर के निचले हिस्से में जा फंसी। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई के बाद बिल्ली को बाहिफाजत उतार लिया। गुजरांवाला में जीटी रोड पुराना रेलवे स्टेशन के करीब फ्लाईओवर के निचले हिस्से में एक बिल्ली अपनी गर्दन फंसा बैठी। बिल्ली के शोर मचाने पर लोग भी बड़ी तादाद में जमा हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार भी मौके पर पहुंच गए और तवील जदोजहद के बाद बिल्ली को आज़ादी दिलाई। जदीद दौर में जहां दीगर कदीम रवाज मिटते जा रहे हैं, वहीं पंजाब की सकाफत की अलामत टांगा भी सड़कों से गायब होता जा रहा है। तेज रफ्तार और जदीद सवारी की आसान दस्तयाबी ने टांगा के इस्तेमाल को इंतहाई कम कर दिया है। अगर हुकूमत पंजाब ने मज़कूरा सकाफती विरसे को ना बचाया तो अगली नस्लें सिर्फ म्यूजियम में ही इसे देख पाएंगी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां नईम इकबाल। जिला सियालकोट में टांगा बानी सदियों पुरानी है, लेकिन जदीद दौर आने की वजह से लोग अब टांगों की बजाय चांद गाड़ियों और रक्षा गाड़ियों में बैठते हैं और टांगों की सवारियों की तादाद में बहुत कमी हो चुकी है। चौक अलामा इकबाल, छौनी, कंदम मंडी बाजार, सरदार बेगम चौक, कोली बैराम चौक समेत हजारों मुकामात पर टांगों के अड्डे अब खत्म हो चुके हैं। 20 साल हो गए ने जुबान दिया ते हुण जिहड़ा चांद गाड़ी आ गई है, काम जिहड़ा खत्म हो गया ना पिंडां च रहा ना इधर रहा। सियालकोट दे विच शहर च है ही कोई नहीं, हुण ऐ 2 टांगे ने। बेहतरीन सवारी टांगाबानी करने वाले घोड़ों का ख्याल भी रखते हैं और महंगाई के दौर में इनकी देखभाल भी करते हैं। शहर में सिर्फ रंगपुरा चौक से सिर्फ 2 टांगे चलते हैं। टाइम की बचत की वजह से चिंची का और रक्षे का ज्यादा इस्तेमाल है
और जो टांगे की जो मतलब सनत है या जो भी अदारा जो है वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है और गरीब आदमी इसमें बहुत पिस रहा है। टांगे जो चलते रहे हैं ये कैंट से ड्रम वाले चौक तक, अब उन्होंने हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है। टांगाबानी माजी की याद ताज़ा करती है, लेकिन महंगाई की वजह से टांगाबानी अब तकरीबन खत्म होने के करीब है। अगर टांगाबानी की तरफ तवज्जो दी जाए तो टांगाबानी जारी रह सकती है, वगरना ये माजी का हिस्सा बन जाएगी। हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से सियालकोट में टांगा की सनत मुकम्मल तौर पे खत्म होने के करीब है। कैमरामैन मोहम्मद खावर के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। उस्ताद को कौम का मामार कहा जाता है, जिसे रूहानी बाप का दर्जा भी हासिल है। सरगोदा में अपने उस्ताद से मोहब्बत का इजहार करने वालों ने उस्ताद की वफात के बाद उसकी याद में किताब लिख डाली। अहवाल जानते हैं सरगोदा से उस्मान शेख की रिपोर्ट में। उस्ताद का मुकाम हर माशरे में इंतहाई अहम है। उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत भी हमेशा से लाजवाब रही है, चाहे उस्ताद दुनिया ही क्यों ना छोड़ जाए। ये हस्ती हमेशा अपने चाहने वालों में जिंदा जावेद है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के शोबा मास कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर अजाज अहमद भट्टी महरूम को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके शागिर्दों ने और दोस्तों ने अपनी तहरीरों को एक किताबी शक्ल देकर अपनी मोहब्बत और खलूस का वाज़िह सबूत दिया है। उन्होंने हमें एक रवायती तरीके से नहीं पढ़ाया, हमारे रवायती तरीके से टीच नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें बताया कि भाई ज़िंदगी के इसरार और रमूज़ क्या हैं, आपने किस तरह हालात का मुकाबला करना है। हर तालिब इल्म के साथ दोस्ताना रवैया और पढ़ाने के साथ साथ उनकी तरबियत कि वो अपने जिस भी प्रोफेशन में जाएं कल वो उसमें कुछ चीज़ बन के दिखाएं। कमाल के उस्ताद थे, वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। तलबा की तरफ से शाया की जाने वाली किताब हम सब का अजाज में जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया गया है, उससे जाहिर होता है कि मरहूम उस्ताद ने अपनी सारी जिंदगी न सिर्फ फरोग इल्म के लिए वक्फ कर दी, बल्कि अपने किरदार और अमाल से लोगों में मोहब्बतें बांट कर हमेशा के लिए जिंदा होंगे। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ उस्मान शेख, वक्त न्यूज़, सरगोदा। गुजरांवाला में सजा रंगारंग पेट एंड एनिमल शो, जिसमें बच्चों ने जानवरों और परिंदों के साथ दिन गुजारा। नन्हे तुलबा ने जानवरों का रूप धार कर टैबलो भी पेश किए। गुजरांवाला में निजी तालीमी इदारे के ज़ेरे एहतमाम रंगारंग पेट एनिमल शो का इनकाद किया गया। शो में आला नस्ल के कुत्ते, नायाब बिल्लियां और मुख्तलिफ जानवरों समेत रंग बिरंगे परिंदे बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शो में शरीक नन्हे तलबा ने जानवरों का रूप धार कर टैबलो भी पेश किया। इस मौका पर असातिज़ा का कहना था कि शो का मकसद बच्चों में जानवरों की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में आगाही फ्राहम करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बच्चे फर्दर लाइफ में स्टडीज़ के साथ साथ ये दूसरी चीज़ें भी प्रमोट होती है, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यहाँ पे फार्म एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं। बच्चों को हम उनके हैबिटेट बताते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं। इनकी फ्राइडे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें उनको एक तो इनके कलर्स बताते हैं, बच्चे खुद जज करते हैं कलर किसका क्या है। Especially peacock, the person who sent it, I'm really thankful to them. These pets, they add beauty to the arena. शो में वालिदैन ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि इस तरह की तकरीबात का इनाकाद होते रहना चाहिए। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा सिंध से। खैरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टाफ बहाल न होने के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने स्टेशन पर एहतजाजी धरना दिया। खैरपुर की सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि पहले खैरपुर स्टेशन पर तकरीबन हर ट्रेन स्टॉप करती थी, लेकिन अब विफाकी हुकूमत की जानिब से खैरपुर के शहरियों के साथ ज्यादती की जा रही है। उनका यह कहना था कि खैरपुर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ सक्खर एक्सप्रेस और तेजगाम का स्टॉप है, जबकि खैरपुर एक तिजारती शहर है। यहाँ से कई चीजें इंडिया, चीन और दीगर ममालिक में सप्लाई होती हैं। एहतजाजी शहरियों का यह कहना था कि सफरी सहूलियात मुयस्सर न आने की वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने रेलवे के वजीर से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर ट्रेनों के स्टाफ बहाल किए जाएं।
गलाजत, कचरे और सीवरेज के नाकिस निजाम ने हैदराबाद के शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। पेटाबाद के मकीन बल्दिया के आला हुक्काम की नाअहली पर सरापा एहतजाज है। हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाके फरीदाबाद में कचरे के ढेर लग गए और सड़कों पर पानी खड़ा होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के पानी की अदम निकासी से स्कूल जाने वाले तुलबा और तालिबात भी अजियत से दो चार हैं। बच्चों को घरों से भी बाहर नहीं निकाल रहे। आप देख रहे हैं स्कूल के अंदर भी बच्चे गए, किस तरह गए, बच्चे फिसल रहे हैं, कोई गिर जाता है, कोई नाली में किसी का पाँव चला जाता है, लेकिन इनको किसी किस्म का ख्याल नहीं है। सिर्फ अपने मुफाद और मकासद के लिए आवाम के पास आते हैं कि वोट दे दो, उसके बाद ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर पे से सींग। ये नाली भरी रहती है, इधर की कोई सुनता ही नहीं है। उधर बोलते हैं तो भंगी भी आते हैं तो बोलते हैं हाँ आ रहे चलो, बस ये कहानी है। इधर इतना कचरा, नर्सरी क्लास लगती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। आपको पता है हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का सबको ही पता होता है। ये देख रहे हैं आप, कचरा महल्ले वालों को मना किया है 20 मरतबा, फिर डाल जाते हैं। पानी का अशर देखे, तीनों गेटों पे पानी है। बच्चे और टीचर कहाँ से है, फिर भी हम बेंचों पर से चढ़कर आते हैं। इलाका मुकीनों का ये कहना था कि गली मोहल्लों में गटर उबल रहे हैं और गंदगी से ताफुन फैल रहा है। बल्दिया आला हैदराबाद के हुक्काम फरीदाबाद पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। सफाई सुथराई के काम को बेहतर किया जाए और गंदगी के दरीना मसाइल को हल किया जाए। जिला ठट्ठा में कायम सरकारी प्राइमरी स्कूल की हालत जार म्यूनिसिपल इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। स्कूल के मैदान में गुज़िश्ता 3 माह से गंदा पानी जमा है, जिसके बायस मासूम बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। तालीमी इमरजेंसी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ये मनासिर किसी स्विमिंग पूल के नहीं बल्कि जिला ठट्ठा में कायम सरकारी प्राइमरी स्कूल उस्मान गंदरों के हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत के बाद स्कूल का अहाता किसी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। पहले इलाका का कहना है कि सीवरेज का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस इलाके भर का गंदा पानी स्कूल के मैदान में जमा हो जाता है। बच्चों और उसातिज़ा को इसी पानी से गुजरकर क्लासरूम तक जाना पड़ता है। यहाँ पे पानी, गंदा पानी जमा हुआ है और आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और बच्चे जो है 100 से ज्यादा बीमार हो गए। 3 महीने से पानी इधर जमा है। कम 100 से ज्यादा बच्चे एडमिट हैं। ये कि गुज़श्ता 3 महीने से पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अभी ये हालत हो गई कि पानी 2 से 2.5 फुट हो गया है। हम जो तहलका इंतज़ाम है उनसे मुसलसल राब्ते में, उनको लिख के भी एप्लीकेशन दिए हैं कि भाई खुदारा ये बच्चों की तालीम डिस्टर्ब हो रही है, आप जो है इस पर थोड़ा तवज्जो दें। मगर अभी तक जो है ना किसी ने जो है ना यहाँ पे आना भी गवारा नहीं किया। ये उस्मान गंदरो स्कूल गुज़श्ता 3 माह से पानी के मुकम्मल घेराव के तले है। ये छोटे मासूम बच्चे आप देखें, ये स्कूल जाते हैं, इनको वालिदैन ने एहतजाजन स्कूल छोड़ना बंद कर दिया। स्कूल के मैदान में खड़े गंदे पानी की सतह 1.5 फुट तक बुलंद हो चुकी है, मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रिंगी, जबकि मुख्तलिफ मूजी अमराज भी जन्म ले रहे हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से इंतजामिया की गफलत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। घोटकी में दुल्हन के घर वाले दुल्हा के साथ हाथ कर गए। 15 साल पहले निकाह हुआ, दुल्हा बारात लेकर पहुंचा तो दुल्हन और उसके घर वाले बारातियों को मामू बनाकर रफू चक्कर हो गए। दिल जले दुल्हे ने लड़की के घर के बाहर धरना दे दिया। धरना दिए और एहतजाज करता ये दिल जला दुल्हा अपनी दुल्हन ब्याहने आया था, लेकिन लड़की के घर वाले उसके साथ हाथ कर गए। घोटकी की तहसील ढेरकी के बिलावल लगारी का 15 साल पहले परवीन से निकाह हुआ, लेकिन जब दुल्हा बारातियों के साथ अपनी दुल्हन लेने पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। लड़की और उसके घर वाले गायब थे। घर में सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था जिसने ससुराल वालों की तरफ से दूसरे रिश्ते की पेशकश की। दूल्हे ने भी जिद कर ली कि अब वो दुल्हन लेकर ही जाएगा। बेचारा बदकिस्मत दूल्हा और बारातियों समेत लड़की के घर के बाहर धरना देकर बैठ गया। जिला इंतजामिया के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। सक्खर के होटल्स और मुसाफिर खानों में आग बुझाने वाले आलात गायब हैं, जबकि हम
हंगामी दरवाजे भी मौजूद नहीं हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। मुबीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, तफसीलात दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सखर के अंदर बेशतर जो 90% से ज्यादा जो होटल हैं या सराय खाने हैं वो आग के हवाले से भी किसी किस्म की जो तदबीर यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये देखने में आया कि जो तमाम जो होटल्स हैं ना तो उधर फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पे मौजूद हैं और ना ही जो है एग्जैक्ट दरवाजे मौजूद हैं कि अगर किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुसाफिरों को दूसरे बैकडोर दरवाजे से निकाला जाए तो वो भी यहाँ पे सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पे जिला इंतजामिया की जाने से बारहा ये कहा जाता है कि होटल मालकान जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो अपने होटलों में तैनात करें, अगर किसी भी खुदा ना खास्ता अगर आग का बहरान शामिल हो तो फौरी तौर पर आग को बुझा सकें। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया मुबीन। और अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, चित्राल, बनू और शबकदर में बारिश और बर्फबारी हुई, जबकि पिशावर में रात गए तक शुरू होने वाली बारिश ताहाल वक्फे वक्फे से जारी है। चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। चित्राल की तहसील मस्तूज और गरम चश्मा के रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश हैं। महकमा मौसमियात ने बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया और शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बर्फबारी से बेशतर सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हैं। चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और बर्फबारी की वजह से बेशतर सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोअर दीर का कहना है कि पुलिस फोर्स को जदीद असलहा, साजो सामान से लैस और उनकी इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। अपने दफ्तर में सहाफियों से बातचीत करते हुए उनका यह कहना था कि जदीद सहूलियात से आरास्ता पुलिस के नए दफ्तर का आगाज कर दिया गया है। तनाज़ात के हल के लिए कायम मुशावरती काउंसिल के मेंबरान और मुकामी मुशीरान के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता दफ्तर की तज़यीन और आराइश मुकम्मल करके उसे काउंसिल के हवाले किया गया है। उनका यह कहना था कि काउंसिल की कोशिशों से जिला भर में अब तक 800 से जायद छोटे बड़े तनाज़ात को हल किया जा चुका है। मानसेहरा में शजरकारी मुहिम शुरू हो गई। डिस्ट्रिक्ट जेल में जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कैदियों के साथ मिलकर पौधे लगाए। मानसेहरा में महकमा ज़राअत और डिस्ट्रिक्ट जेल के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कैदियों की इखलाकी तरबियत के लिए उनकी समाजी कामों में शमूलियत को मुमकिन बनाते हुए इन कैदियों की मदद से डिस्ट्रिक्ट जेल के अहाते में पौधे लगाए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जेल के हुक्काम भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। उन्होंने कहा कि आज वो जो दरख्त लगाएंगे कल हजारों इंसान इसका फल खाएंगे। उनका यह कहना था कि शजरकारी के अलावा ट्रैफिक कंट्रोल, सियाहत के फरोग और दीगर समाजी और फलाही कामों में इन कैदियों की तवानाई को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी इखलाकी तरबियत भी होती है। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है।
कोयटा में बारिश के बाद बादलों से बर्फ के गोले गिरने लगे, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा में मजीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। कोजिक टॉप, वादी ज़ियारत, कान मेहतरजई के अलावा तुबा, अचकजई, गुलिस्तान, किला अब्दुल्ला, शैलाबाग, चमन और चागी समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी हुई। शुमाली बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। कोजिक टॉप पर शदीद बर्फबारी से कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। कोजिक टॉप से भारी मशीनरी की मदद से बर्फ हटाई जा रही है। महकमा मौसमियात ने बलाई इलाकों में आज और इतवार को लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया और शहरियों को मोहतात रहने। डेरा मुराद जमाली में टारगेट किलिंग में शहीद होने वाले CIA के इंचार्ज हदायतुल्लाह कोलाची समेत दीगर 6 पुलिस एहलकारों के कातलों की गिरफ्तारी के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस राय के मुताबिक नसीराबाद डिवीजन के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। मदद के लिए FC को भी तलब कर लिया गया है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जराये के मुताबिक नसीराबाद में जराइम पेशा और इश्तहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है, जबकि डेरा मुराद जमाली में मंशियात, शराब और जुए के अड्डों को भी सील कर दिया गया है। पुलिस अफसरान ने तनबीह की है कि जिस भी मुत्तलिका थाने की हदूद में क्राइम हुआ उसका जिम्मेदार मुत्तलिका थाने का SHO और DSP होंगे। जाफराबाद में ऑल पार्टीज इत्तेहाद का जाफराबाद और डेरा अल्लाहयार में सफाई और सीवरेज सिस्टम समेत दीगर मसाइल के बारे में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जाफराबाद में मुनक्किदा ऑल पार्टीज इत्तेहाद के इजलास में मुख्तलिफ पार्टीज के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए शुरका ने कहा कि डेरा अल्लाहयार सिटी मसाइल का गढ़ बन चुका है, हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं। उनका यह कहना था कि जाफराबाद में भी सफाई का निज़ाम अबतर है, मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी हैं। मुंतखब नुमाइंदों और म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे। उनका यह कहना था कि शहरियों को पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों शहरों में सीवरेज सिस्टम ना होने के बराबर है, नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। और पार्टीज इत्तेहाद ने शहर की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालिबा किया। और अब कुछ खबरें आज़ाद कश्मीर से। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा ताकि मकबूजा कश्मीर की आवाम पर भारतीय मुजालिम को बेनकाब किया जा सके। इसी हवाले से देखते हैं रावलाकोट से सैयद मरसूद गर्देजी की ये रिपोर्ट। छब्बीस अक्टूबर 1947 से जमहूरियत के नामनाद दावेदार भारत ने कश्मीरियों को बज़ोर शमशीर गुलाम बनाया हुआ है। हालांकि 1948 से सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर के हवाले से करारदादें भी मौजूद हैं, जिन पर अमल दरामद का भारत ने वादा किया मगर खुद मुनर्रफ हो गया और मकबूजा कश्मीर को भारतीय कॉलोनी बनाकर 8 लाख से जायद फौज तैनात कर दी, जिसने इंसानी हकूक को बुरी तरह पामाल किया। लाखों कश्मीरी जामे शहादत नोश कर चुके, मजहबी त्यौहार मनाने की भी इजाजत नहीं और कश्मीरियों पर मजालम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिन पर अक़वाम आलम की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। 5 फरवरी का दिन अक़वाम आलम की तवज्जो मसला कश्मीर की तरफ दिलाने के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर के अवाम का इज़हार यकजहती करना है कि कश्मीरी और पाकिस्तानी यकजान और दो कालब हैं, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। इस मौका पर उन कश्मीरी शोधा को भी खराज अकीदत पेश किया जाता है जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जिंदगियां खो दी और भारत को भी ये पैगाम दिया जाता है कि नामनाद जमहूरियत के खोखले दावों के बजाय हकीकत पसंदी से काम ले। सैयद मसूद गर्देजी, वक्त न्यूज़, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।